Hello students, today we will study about the techniques of scientific management. We have already finished the principles of scientific management. I hope you understand all the principles of scientific management, that is science, not rule of thumb, harmony, not discord, cooperation, not individualism, and the last one is development of the employees to their greatest prosperity. Today in this business tutorials by me, let's create your future together. And today's topic is Taylor's technique of scientific management. There are so many techniques of Taylor which emphasizes that how in a business enterprise to increase the efficiency of the worker. All the techniques of Taylor which he has given, they all insist that there should be a platform provided to all the employees to increase their efficiency. Taylor always works on shop level. He always thinks about the prosperity and the development of the employees. So, the techniques of scientific management are functional foremanship, standardization and simplification of work, method study, differential piece-based system, fatigue study, time study, and the last one is motion study. Today in this series, in this video, we will study about the first two techniques of Taylor, that is functional foremanship and standardization and simplification of work. The first one is functional foremanship. It is a technique in which Taylor divide the work in two departments, that is production and planning department. फंक्शनल फॉरमैनशिप में टेलर ने क्या किया? फंक्शनल फॉरमैनशिप एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टेलर ने एक बिज़नेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक बिज़नेस में जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, उन ड्यूटीज़ को उसने दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. एक इज़ द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द अदर वन इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. उसने जो ओवरऑल राम है हमारे बिजनेस में, उस राम को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया और दूसरा बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जो प्लानिंग डिपार्टमेंट था वो प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करेगा, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था दैट विल कंट्रोल एंड रेगुलेट द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन. सो इसमें उसने क्या किया, जो मैनेजर था उस मैनेजर ने दो इंचार्जेस बनाए. द नंबर वन इज़ प्लानिंग इंचार्ज एंड द अदर वन इज़ प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लान्स बनाएगा, और जो प्रोडक्शन इंचार्ज है दैट विल अरेंज द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल फॉरमैनशिप. अब यहाँ एक वर्ड आता है फॉरमैन. अ फॉरमैन बिलोंग्स टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड इज़ द हाइएस्ट रैंकिंग वर्कर. हमने जब सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, इन दैट वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट फॉरमैन. फॉरमैन कम्स इन supervisory level of management or lower level of management, but in the lower level of management or supervisory level of management, foreman is at the highest rank. He is the center around whom the entire production, planning, implementation and control revolve. So it is important to improve his performance. जो foreman होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर मैनेजर के लिए कि वो foreman की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करें. सो फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है वो बनाया गया था. इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क. याद रहे, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है वो फेओल की किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड दैट प्रिंसिपल इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क. फेओल ने भी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया था टू अचीव स्पेशलाइजेशन, और वही चीज़ टेलर ने फंक्शनल फॉरमैनशिप में की है. यहाँ पे उसने भी सेपरेशन किया है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट्स का. सो उसने ये बोला कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द क्वालिटीज़ इन अ सिंगल पर्सन. अ इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट handle all the activities, that is production and planning together. So he divide the activities, he separated the department planning and production. Under planning in charge he placed 4 personnel.
फिर उसने क्या किया, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसने बनाए थे, उस प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसने 4-4 बॉसेस या 4-4 सुपरवाइज़र जो है वो अपॉइंट किए, और वो 4 सुपरवाइज़र डिसाइड करेंगे कि आगे सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह से की जाएगी. सो अंडर प्लानिंग इंचार्ज ही प्लेस्ड 4 पर्सनल, नेमली, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लानिंग इंचार्ज, द मेन फंक्शन ऑफ प्लानिंग इंचार्ज इज टू प्लान ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ जॉब टू बी परफॉर्म्ड. प्लानिंग इंचार्ज का मेन काम क्या हो रहा कि जो भी एक्टिविटीज़ की जाने वाली है, यानी कि जो भी काम किया जाने वाला है, वट एवर द जॉब हैज़ टू बी डन, ही प्लान ऑल द परफॉर्मा ऑफ दैट जॉब, कि वो सारी की सारा जॉब जो है वो किस तरह से हो रहा. इट कंसिस्ट ऑफ 4 पोजिशन. फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. द मेन फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, as it is clear from the name, instruction card clerk. So his main function is to provide instruction how the workers will perform their jobs. Instruction card clerk क्या करता है? Instruction card clerk is the supervisor who gives instruction to the employees, to the subordinates, how to perform the job which has been assigned to them. जो भी जॉब उन्हें असाइन की रही है, जो भी ड्यूटीज़ उन्हें दी रही है, उन ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शन इशूड किए जाएंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के द्वारा. द सेकेंड वन इज रूट क्लर्क. एज इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द नेम रूट, इट मीन्स अ पाथ. द रूट क्लर्क स्पेसिफाइज द रूट ऑफ प्रोडक्शन. what will be the sequence to perform various mechanical and manual operations. Route clerk decide what will be the steps taken by the workers to perform any job or any duty. He also decide the job to be done for the day and where it is to be done. रूट इंचार्ज डिसाइड द जॉब, जो जॉब आपको पूरे दिन में करनी है वो जॉब कहाँ करनी है, और वट विल बी द मेथड ऑफ डूइंग दैट जॉब. इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द रूट इंचार्ज. टाइम एंड कॉस्ट इंचार्ज, इट फिक्सेस द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द वर्क. टाइम इंचार्ज क्या करता है, ही फिक्स्ड द टाइम कि एक काम जो होना है आपके बिजनेस में वो काम कब शुरू हो रहा और कब उस काम को कंप्लीट करना है, वो टाइम फिक्स करता है टाइम इंचार्ज. एंड द कॉस्ट इंचार्ज प्रिपेयर्स द कॉस्ट शीट फॉर ईच जॉब, कि कितना ज़्यादा कॉस्ट जो है वो उन्हें पड़ रहा है किसी भी जॉब को करने के लिए. द लास्ट वन इज डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन का मतलब क्या होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर डिसिप्लिन इन द वर्क प्लेस. जैसा कि आप हमें सबको पता है कि विदाउट डिसिप्लिन कोई भी काम जो है वो सिस्टमेटिक वे से नहीं हो सकता है. सो डिसिप्लिन इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, ही हैज़ टू मेंटेन द डिसिप्लिन. ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन ईच जॉब फ्रॉम प्लानिंग टू सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन. कि जब प्लान्स बन रहे हैं सो उन प्लान्स के हिसाब से सारा का सारा काम जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, ये चीज़ इंश्योर करता है डिसिप्लिन इंचार्ज. सो प्लानिंग इंचार्ज में हमने 4 बॉसेस पढ़े. प्लानिंग इंचार्ज क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज वो इंचार्ज होता है जो प्लानिंग करता है. उसके बाद इसमें हमने 4 बॉसेस, टेलर ने प्लानिंग डिपार्टमेंट में आज ये 4 सुपरवाइजर्स जो है वो अपॉइंट किए हैं. नंबर 1 इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. ये क्या करता है, ही प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग द जॉब इन द राइट वे. Route incharge, he specify the method of doing the job, how the job will be done, how the production activities will be done, and what and where the jobs will be done. Time and cost incharge. Time incharge fixes the time for starting and completion of the job, and the cost incharge prepare the cost sheet for each job. And the discipline incharge ensure that all the activities in your business are performed as per the plans which was formulated by the planning department. So I hope you understand the planning department. Now what is the production in charge? The main function of production in charge is to get the work executed as per the plan. कि जो प्लानिंग इंचार्ज ने प्लान्स बनाए हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज इंश्योर्स दैट all the work, all the duties, all the activities, all the jobs which will be done as per the
प्लानिंग डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन, कि जो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है सारा का सारा काम जो है वो उन्हीं प्लानिंग डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के बेसिस पे हो. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 पोजिशंस. फर्स्ट वन इज स्पीड बॉस. Speed boss is the person who is responsible for the timely completion of the job, who take care of the speed of the production process. कि जो टाइम डिसाइड किया गया है प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे सबॉर्डिनेट्स या हमारे वर्कर्स उसी स्पीड के साथ काम कर रहे हैं कि उतने टाइम में हमारा प्रोडक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा. सो ही चेक्स वेदर वर्क इज प्रोग्रेसिंग एज पर द शेड्यूल और not. He is responsible for the timely and accurate completion of the job. Second one is RAM boss. He is responsible for arranging all the machines and the tools which will be required by the workers for doing the production activities. Whatever the resources, whatever the equipments you need for doing the production activities, all the resources will be arranged by this boss. Third one is repair boss. Repair boss ensures that all the machinery, all the equipments which are needed in the production process are in proper working condition. वो ये इंश्योर करता है कि किसी भी मशीनरी को या किसी भी इक्विपमेंट को रिपेयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है. जब भी हमारे एम्प्लॉयज़ मशीनरी पे या इक्विपमेंट्स पे काम करने के लिए जाएंगे तो सारी की सारी मशीनरी और इक्विपमेंट्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, किसी भी तरह का फॉल्ट उनमें नहीं है. इंस्पेक्टर. He ensures that the work is done as per the standard of quality. इंस्पेक्टर ये श्योर करता है कि जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, वट एवर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर डन बाय द एम्प्लॉयज़, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट. ओके, सो एज यू कैन सी, प्लांट सुपरिटेंडेंट देन divided the task in 2 departments, planning department and प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 इंचार्जेस आते हैं: रूट, इंस्पेक्शन, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनेरियन. एंड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर इज रैन बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस. द मेन एम ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप. क्यों टेलर ने फंक्शनल फॉर्मैनशिप बनाई? देखिए, वैसे अगर बात की जाए तो टेलर की जितनी भी टेक्निक्स है, ऑल द टेक्निक्स ऑफ टेलर एम्स एट इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़. फंक्शनल फॉर्मैनशिप बनाने के पीछे टेलर का मेन ऑब्जेक्टिव था टू डिवाइड द वर्क एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय अचीविंग स्पेशलाइजेशन. टेलर ये चाहता था कि अगर सारी की सारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया जाए तो बर्डन ऑफ वर्क जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा और एम्प्लॉयज़ जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और एक ही तरह की एक्टिविटी में वो स्पेशलाइजेशन अचीव कर पाएंगे. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. ये बेस्ड है फ्योल की डिवीज़न ऑफ वर्क के प्रिंसिपल पे, बट इट वायलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था. यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट देयर शुड बी 1 बॉस फॉर 1 एम्प्लॉय. एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम 1 बॉस. लेकिन अगर हम फंक्शनल फॉर्मैनशिप की बात करें तो यहाँ 4 बॉसेज हैं. सो इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. सो फंक्शनल फॉर्मैनशिप is the first technique of Taylor, in which he divide the activities into 2 departments, that is planning in charge and production in charge, and in each department he appoints 4 bosses which carry on the other activities or the next activities. Now we will study our next technique, that is standardization and simplification. So this is the second technique of Taylor which aims at increasing the quality of output. जो टेलर की स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक है, वो टेक्निक का मेन स्ट्रेस जो है वो इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट. कि वट एवर द आउटपुट योर बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग, दैट आउटपुट शुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी. क्वालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाना चाहिए. एज वी ऑल नो दैट स्टैंडर्डाइजेशन इज द वे टू सस्टेन द गेन्स. विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन all your improvements will roll back with time. If you want to increase your sale, if you want to increase your profit, then you have to provide standardized material to the consumer. So according to Taylor,
Various method of production prevalent under the rule of thumb should be analyzed. Out of those, the best practice should be retained. टेलर ये कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जो है, हालांकि रूल ऑफ थंब से बहुत सारे मेथड्स जो है वो डिसाइड किए जा सकते हैं, बट अगर हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इज द टेक्निक विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी बिजनेस टू इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट. So what does standardization mean? Standardization is the process of defining and applying the conditions to ensure that a given range of requirements can normally be met with a minimum of variety. Standardization क्या कहता है? Standardization is the process of setting standard for different factors. Standard can be set for process, raw material, time, प्रोडक्ट, मेथड एक्सेट्रा. स्टैंडर्डाइजेशन क्या रहता है? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करने, यानी कि जिस क्वालिटी का मटेरियल हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वो क्वालिटी हमें फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस से ही जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए. ये नहीं कि हम अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं लेके आ रहे हैं, हमारी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, हमारे पास मशीनरी अच्छी नहीं है, लेकिन हम चाहते ये है कि हमारा आउटपुट जो है वो एक्सट्रीम क्वालिटी का हो, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल. स्टैंडर्डाइजेशन में टेलर ये रहता है कि अगर आपको स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो वो स्टैंडर्ड्स आपको डिफरेंट फैक्टर्स के लिए फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से ही सेट करने पड़ेंगे. यू शुड बाय द एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यू शुड बाय द एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ मशीनरी, यू शुड अप्लाई द बेस्ट मेथड ऑफ production, and your working condition should be appropriate so that the workers feel satisfied in doing the production process. So the main objective of setting standard is to produce product of same type, size and अगर आप स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड सेट करके चलेंगे तो आपके सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो सेम टाइप या सेम साइज़ के ही बनेंगे. और टू प्रोवाइड द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट. और फॉर एग्जांपल आप जैसे देखो, बाटा का शोरूम होता है, चेन स्टोर होते हैं बाटा की. बाटा का जो सेम शो पीस आपको जयपुर में मिलेगा, वही सेम शो जूते का साइज़, शेप या साइज़ जो है वो आप दिल्ली की बाटा की ब्रांच से भी ले सकते हैं. तो बाटा इंश्योर्स इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि इस तरह के, इसी शेप के, इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो है वो उन्होंने सेट किए हुए हैं कि ये क्वालिटीज़ होगी हमारे जूते में, इस तरह से बनाए जाएंगे, ये शेप होगी, ये डिज़ाइन हो रहा, ये साइज़ हो रहा. सो तभी भी जो है वो इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो की जा सकती है. और टू सेट अप द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटीरियल. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टेक्निक इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड वेराइटीज, साइज, प्रोडक्ट एंड डायमेंशन. सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने से अच्छा है कि हम कम प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रीम क्वालिटी का हो. इट मीन्स द रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट. जैसे मान लो एक कंपनी जो है वो 10 तरह के प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उन 10 प्रोडक्ट में से 5 की उसकी सेल जो है वो डिक्लाइन जा रही है, डाउन जा रही है बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी. तो बजाय 10 प्रोडक्ट्स बनाने के वो 5 प्रोडक्ट बनाए, लेकिन उस 5 प्रोडक्ट में एक्सट्रीम क्वालिटी जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाए. तो सिंप्लीफिकेशन मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज मैन, मशीन एंड मटेरियल थ्रू अनइंटरप्टेड रन्स एंड फ्यूअर मशीन स्टॉपेजेस. ओके, सो सिंप्लीफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस थ्रू विच अननेसेसरी वेराइटीज एंड डिजाइंस आर एलिमिनेटेड. कि आप थोड़ा बनाए, लेकिन जितना बनाए वो एक्सट्रीम क्वालिटी का बनाए. सिंप्लीफिकेशन ऑफर्स बूस्ट टू स्टैंडर्डाइजेशन. सो in today's video we have studied about the two techniques of Taylor, that is functional foremanship and standardization and simplification of work. Functional foremanship में हमने ये पढ़ा कि each and every activity in the business should be divided into two parts, production and planning. फिर further production and planning department में bosses अपॉइंट किए जाते हैं और वो bosses आगे आपकी बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है टू मेंटेन स्टैंडर्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स रिडक्शन इन अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट.
ओके, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में ये है कि आप जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी तैयार करना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड आप फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अपनाएं, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि कम प्रोडक्ट्स बनाएं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं दैट शुड बी ऑफ एक्सट्रीम क्वालिटी. सो it is the today's topic. Later on in the next video we will study about the next techniques of scientific management.